السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، کئی ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہندوستان سے ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ کس طریقے سے ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف نفرتوں میں شدید اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ نفرت صرف عام شدت پسند ہندوؤں تک محدود نہیں رہی، بلکہ تعلیمی اداروں میں بھی کھل کر بے خوف طریقے سے مسلمانوں کے خلاف نفرت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ تازہ معاملہ گجرات یونیورسٹی میں زیر تعلیم بیرون ممالک کے طلباء کے ساتھ پیش آیا ہے، جہاں مسلم طلباء بتایا جا رہا ہے کہ وہ رمضان کے دوران تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، جس کے دوران شدت پسندوں کے گروہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس دوران انہیں مارا پیٹا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی اور جے شری رام کے نعرے لگائے گئے اور بھدی گالیاں جو ہے وہ انہیں دی گئی۔ اور اس پورے واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں شرنگیزی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ افغانستان سے تعلق رکھنے والے ایک طالب علم نے میڈیا نمائندے سے بات چیت کی ہے، جس میں اس نے پوری تفصیلات جو ہے وہ بتا دی ہے اور بتایا کہ پہلے تو 2-3 لوگوں نے نماز پڑھنے سے انہیں روکا، اور جب انہوں نے پوچھا کہ آخر مسئلہ کیا ہے تو پھر وہ نعرہ لگاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، لیکن تھوڑی دیر میں 200 سے 250 افراد پر مشتمل ہندوتوادی غنڈوں کی ایک بھیڑ جو ہے وہ وہاں جمع ہو گئی۔ اور وہ سب کو شاؤٹ کیا جے شری رام، اور ہم لوگ کو نماز ادھر پڑھا تھا، اور وہ لوگ ہم لوگ کو اسٹون سے مارا تھا، باہر سے ہم لوگ کو اسٹون سے مارا تھا، جو جب تک اس کا تعداد، اس کا مطلب پاپولیشن زیادہ ہوگا، ہم لوگ اس کی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ تو روم سے اندر آیا، جو اب تک روم سے اندر آیا وہ لوگ، اس کے پاس وہ نائف بھی تھا، سب کچھ، وہ بھی اکوپمنٹ تھا۔ ہم لوگ روم کی ایسا ٹوٹ گیا تھا، لیپ ٹاپ بھی ٹوٹ گیا، ادھر تو دیکھ رہا ہے فون ہے، ساؤنڈ سسٹم ہے، اے سی ہے، سب کچھ ٹوٹ گیا۔ اور ہم لوگ یونیورسٹی کا یہ ویسے، کیونکہ ہم لوگ کیا سیف جگہ پہ ادھر کو we want from Gujarat University that they transform us in a safe place because we are not saving in this place. انہوں نے ان پر پتھراؤ کیا، لاٹھیوں سے حملہ کیا اور چاقو سے حملہ کیا، اور ان کے سامان اور ان کی بائک، تمام چیزوں کو جو انہوں نے جو ہے وہ توڑ دیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ کئی طلباء زخمی ہوئے ہیں۔ وہیں پولیس سے جب شکایت کے بارے میں طالب علم سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ خود پولیس وہاں پہلے سے موجود تھی اور انہوں نے ہی غنڈوں کو وہاں سے جانے دیا۔ No, we didn't complain to police because police already allowed them to go and leave their hostel. That the person that are attack on us, police all left, allow us to leave the hostel. اتر پردیش کے الہ آباد سے تعلق رکھنے والے سرگرم سماجی کارکن اور رہنما جاوید محمد 21 ماہ بعد دیوریا جیل سے باہر آ چکے ہیں۔ جاوید محمد کو 2022 کے پریاگ راج تشدد معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ 21 ماہ کے بعد اپنے خلاف مقدمات میں ضمانت ملنے کے بعد وہ گزشتہ روز باہر آئے ہیں۔ جاوید محمد کو اتر پردیش کی دیوریا جیل میں رکھا گیا تھا۔ بدرے کے جاوید محمد کو 11 جون 2022 کو پریاگ راج سے گرفتار کیا گیا تھا۔ پیغمبر اسلام کے خلاف بی جے پی کی رہنما نپور شرما اور نوین جندل کے ذریعے توہین آمیز تبصرے کے بعد اتر پردیش سمیت ملک کی متعدد ریاستوں میں احتجاج منظم کیا گیا تھا۔ کانپور، پریاگ راج اور دیگر مقامات پر اس کے بعد مظاہرے ہوئے، جس میں تشدد بھی ہوا، اور جس کے بعد یو پی حکومت نے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ اسی دوران جاوید محمد کو الہ آباد میں مظاہرہ منظم کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ حالانکہ جاوید محمد ہمیشہ امن کمیٹی کے رکن رہے اور جھگڑے سلجھانے میں ان کا کردار ہوا کرتا تھا، لیکن یوگی پولیس نے انہیں ہی اصل مجرم، کلیدی ملزم بنا کر جو ہے وہ جیل بھیج دیا، اور دوسرے ہی دن ان کا گھر، ان کا مکان جو تھا وہ بھی توڑ دیا گیا تھا۔ بتایا بھی جاتا ہے کہ سی اے مخالف مظاہروں میں ان کی بیٹی آفرین فاطمہ کے فعال کردار کی وجہ سے وہ پہلے ہی پولیس کے رڈار پر تھے، اور اسی وجہ سے جو ہے ان کے خلاف کارروائی کی گئی تھی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ صہیونی بمباری سے مزید 92 فلسطینی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہید ہوئے ہیں، جبکہ متعدد زخمی ہیں۔ اسرائیل نے رات گئے دیر البلح کے ایک مکان پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 12 فلسطینی ایک ہی خاندان کے جو ہے وہ شہید ہو گئے، جن میں زیادہ تر جو ہے وہ خواتین اور بچے بتائے جا رہے ہیں۔
वहीं 24 घंटों के दौरान इसराइल की जानिब से फायरिंग के नतीजे में बमबारी के नतीजे में 92 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। वहीं बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7 इमदादी ट्रक जबालिया पहुंच चुके हैं और 6 गज़ा सिटी पहुंचे हैं, जबकि ये पहला मौका है 4 महीनों में कि इमदादी ट्रक बग़ैर किसी परेशानी या मुदाखलत के गज़ा पहुंचे हैं। और इसके बावजूद NGOs और रिहायशियों का कहना है कि ये लाखों फ़लस्तीनियों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी है। उन्होंने बताया कि सूरत हाल इतनी ख़राब है कि जो इमदाद पहुँच रही है उन्हें हासिल करने के लिए बड़ी मशक्क़त उठानी पड़ रही है और लोगों को आपस में झगड़ना पड़ रहा है। वहीं जो इमदाद फ़ज़ा से गिराई जा रही है वो कभी कभार आफत बनकर भी गिर रही है। पैराशूट न खुलने से वो इमदाद जो है वो बम का काम कर रही है, जिससे कई लोग उससे भी जान की बाजी हार गए हैं। जबकि इमदादी सामान कभी कभार समंदर में गिरा दिया जाता है, जिसे लाने के चक्कर में कई फ़लस्तीनी बच्चे जो है वो डूब कर जाँ बहक हो गए हैं। वहीं इसी तरह के हालात गज़ा में हैं और आलमी बरादरी लगातार नाकाम साबित हो रही है। दूसरी जानिब मिस्री हुक्काम का कहना है कि कतर में इसराइल और हमास के दरमियान गज़ा में जंग पर मुज़ाकरात आज से दोबारा शुरू होने का इम्कान है। वहीं इसराइली मुज़ाकराती वफ़द में बताया जा रहा है कि मूसाद के सरबराह भी शामिल होंगे। वहीं इस मुज़ाकरात से कबल इसराइली काबीना का इजलास भी जो है आज तलब किया गया है, जिसमें मुज़ाकराती वफ़द के इख्तियारात पर बातचीत की जाएगी। बता दें कि हमास ने 3 मराहिल पर मुश्तमिल जंगबंदी का खाका पेश किया है, जिसका हर मरहला जो है वो 42 दिन तक जारी रहेगा। पहले मरहले में इसराइली अफवाज को रशीद और सलाहुद्दीन गलियों से पीछे हटना होगा ताकि बेघर फ़लस्तीनी जो है वो वापस अपने इलाक़ों की तरफ लौट जाएं, जबकि इसराइली जेलों में कैद 1000 फ़लस्तीनियों के बदले कुछ यरगमालियों को वो रिहा करेंगे, जिसमें से उम्र कैद की सज़ा पाने वाले कैदी भी शामिल होंगे जो इसराइल ने उन्हें कैद कर रखा है। दूसरे मरहले में गिरफ़्तार फ़ौजियों के तबादले से कबल मुस्तकिल जंगबंदी के ऐलान का भी मुतालबा किया गया है, जबकि तीसरे मरहले में गज़ा में तामीर नौ का अमल शुरू करना और इनक्लेव पर इसराइल का मुहासरा ख़त्म करना शामिल है। वहीं यमन ने एक बार फिर से खलीज आदन से गुजरने वाले एक तिजारती बहरी जहाज़ को निशाना बनाया है। ताहम अमला और जहाज़ दोनों महफूज बताए जा रहे हैं और जहाज़ अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा है। यमन के हूसी बागी लगातार बहरी जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं ताकि इसराइल को गज़ा पर अपनी जंग ख़त्म करने पर जो है उन पर ज़ोर दिया जा सके। जबकि अमरीकी फ़ौज की जानिब से कहा गया है कि उसने हफ्ते की रात यमन के हूसियों के ज़ेर कंट्रोल इलाक़ों में बग़ैर पायलट के 5 जहाज़ों और 1 फ़ज़ाई ड्रोन को तबाह कर दिया है। वहीं लबनान और इसराइली सरहद पर कशीदगी भी बरकरार है। एक तरफ हिज़्बुल्लाह ने काबिज़ इसराइली फ़ौजों के इज्तिमा को निशाना बनाने की इत्तला दी है, तो दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने बयान जारी कर कहा है कि जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल फ़ौजी इमारत पर बमबारी की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा इंतखाबात 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आम इंतखाबात 7 मराहिल में होंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी और 6 जून को इंतखाबात को मुकम्मल करार दिया जाएगा। वहीं इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने हफ्ते के रोज़ पार्टी कारकुनान को लोकसभा इंतखाबात में पूरी तैयारी से जुटने की अपील करते हुए कहा कि इस इंतखाब से हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय होने वाला है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें पसमानदों, दलितों और अक़लियतों के ज़रिए बीजेपी को शिकस्त देना है। अखिलेश यादव का कहना था कि बीजेपी अंग्रेज़ों वाली फूट डालो और राज करो पॉलिसी के तहत समाज में नफ़रत फैलाने और तकसीम करने का काम कर रही है और कहा कि आवाम सब समझ रही है और सब कुछ देख रही है और वो इस इलेक्शन में उसे जवाब देगी। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र में ख़त्म हो गई। राहुल गांधी ने आवाम से मुखातब होते हुए कुछ अहम बातें उनके सामने रखी। उन्होंने कहा कि धारावी हिंदुस्तान के हुनर की राजधानी है। हिंदुस्तान में लड़ाई हुनर और दलाल के दरमियान है। हिंदुस्तान में लड़ाई धारावी और अडानी के दरमियान है। में लड़ाई हुनर और दलालों के बीच में है। धारावी और अडानी के बीच में है। और इसीलिए यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया। अब पूरे हिंदुस्तान में गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। जहां भी हम देखें वही 2-3 नाम दिखाई देते हैं, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी।
ये धारावी जो है, ये जमीन आपकी है, आपकी मेहनत की जमीन है। अब ये जमीन वही दलाल लोग आपसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं और अदानी के पीछे देश का प्रधानमंत्री है। अदानी अकेला नहीं खड़ा है, अदानी के पीछे देश का प्रधानमंत्री खड़ा है, देश का प्रधानमंत्री खड़ा है। उसके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चंदा मामा, ये उनके पीछे शक्ति खड़ी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के साथ असम्बली इंतखाबात का इनकाद न कराने पर मरकज़ की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है और यहाँ एक अच्छा मौका था कि दोनों इंतखाबात बैक वक्त कराए जाएँ, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर पार्लिमानी इंतखाबात के लिए साजगार हालात हैं तो असम्बली इंतखाबात के लिए कैसे ठीक नहीं है। मुझे तो कुछ और ही चीज़ लग रही है। इस तरह की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि ये अफसोसनाक है कि तमाम सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन कमीशन को जम्मू कश्मीर में एक साथ इंतखाबात का मुतालबा किया गया था, ताहम उसके बावजूद भी असम्बली इंतखाबात में ताख़ीर हुई है। What is the reason for it? या तो दाल में कुछ काला है, इसे ये डिले कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री इलेक्शन if security is not there. It's the same security you need for parliamentary election. You need the same security for assembly elections. 7 phases are there to hold election in the country. Then why not Jammu and Kashmir? But this is something strange talk coming from the election commission. वज़ीर की इलेक्शन कमीशन ने 18वें लोकसभा इंतखाबात, 4 रियासतों के असम्बली इंतखाबात और 13 रियासतों की 26 असम्बली सीटों के ज़मीनी इंतखाबात का ऐलान किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी वजूहात का हवाला देते हुए असम्बली इंतखाबात न कराने का ऐलान किया है, जो कि अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि ख़ुद मोदी हुकूमत, उसके वज़रा ये बताते नहीं थकते कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक हो चुका है। मरकज़ी हुकूमत ने शहरियत तरमीमी क़ानून यानी कि CAA नाफिज तो कर दिया है, लेकिन उसकी मुखालफत बढ़ती जा रही है। कई अफराद सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए हैं तो कई तैयारी कर रहे हैं। इस सिलसिले में केरल हुकूमत ने भी सुप्रीम कोर्ट से अब रुजू किया है। रियासती हुकूमत ने इस कानून को मजहबी बुनियाद पर तफरीक पर मबनी करार दिया है और सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो इस कानून पर अमल दरामद रोक दे, ताकि मुल्क में इंतशार की कैफियत जो है वो पैदा न हो। असदुद्दीन ओवैसी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने NRC का मसला भी उठाया। उन्होंने अदालत में दरख्वास्त दायर करके अपील की कि CAA के निफाज पर फौरी रोक लगाई जानी चाहिए। ओवैसी ने कोर्ट से अपील भी की है कि हिदायत जारी करें कि उन कार्रवाइयों के ज़ेर इल्तवा रहने के दौरान किसी भी शख्स को शहरियत एक्ट 1955 का इस्तेमाल करने की इजाज़त न दी जाए। CAA के निफाज के बाद अगरचे बड़े पैमाने पर मुल्क में एहतजाज हो रहे हों, सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा चुका हो, दरियासना इस कानून पर अमल दरामद गुजरात में शुरू हो चुका है। अहमदाबाद गुजरात में मुकीम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 18 हिंदू पनाह गुज़ीरों को हिंदुस्तानी शहरियत दी गई है। वह कश्मीरी अलायदगी पसंद लीडर यासीन मलिक की तंजीम पर आयद पाबंदी में मरकज़ी हुकूमत ने तौसी करते हुए उसे मज़ीद 5 साल तक बढ़ा दिया है। मोदी हुकूमत ने ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट 5 साल की मुद्दत के लिए गैर कानूनी तंजीम रहेगी। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कलादन तंजीम जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी और अलायदगी पसंदी को फ़रोग़ देने की सरगर्मियों में मुलव्वस है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह यासीन मलिक को 24 मई 2022 को एक ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, जिसने उन्हें UAPA और ताज़ीरात हिंद के तहत मुख्तलिफ जराइम का मुजरिम करार दिया था। वहीं NIA ने इमसाल की शुरुआत में दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दाखिल करते हुए उम्र कैद की सज़ा को सज़ाए मौत में बदलने की भी दरख्वास्त की है। पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात के बाद से ही ट्विटर पर पाबंदी आयद है और तकरीबन 1 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन उस पर से पाबंदी हटाई नहीं गई और न ही उसको लेकर कोई वजह बयान की गई है। इसी को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ट्विटर को फौरी तौर पर बहाल करने का पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा किया है। एमनेस्टी ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयाँ न सिर्फ आज़ादी इजहार और मालूमात तक रसाई जैसे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करती हैं, बल्कि मुल्क के अंदर मुख्तलिफ आवाज़ों समेत हकीकी सियासी बातचीत को दबाने की एक मिसाली कोशिश हैं। बयान में पाकिस्तानी टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी
پی ٹی آئی کی خاموشی پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے ایکس کی بندش سے متعلق کوئی وجہ نہیں بتائی ہے اور پورے انٹرنیٹ پلیٹ فارم کو بلاک کر کے اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikroخبر.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔